9 بجے سے میری وہاں تقریر ہے، 10 روزہ پروگرام چل رہا ہے. بس مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں گا، پھر نماز کو ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب القديم: فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سیدنا مولانا محمد وسلم، صلو علیہ وصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، ہم اور آپ جس عظیم المرتبت اور ابقری شخصیت نواسے رسول حضرت امام علی مقام امام حسین کی یاد میں اور ان کا ذکر جمیل سننے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، یقیناً یہ باعث برکت بھی ہے اور نیک بختی بھی ہے. یہ وہ محفل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہماری ان محافلوں سے راضی ہو جائے تو یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی بن سکتی ہے. بے شک، سبحان اللہ. اس لیے کہ حدیث پاک ہے: المرء مع من احبہ. کل قیامت کے دن انسان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ انسان دنیا میں محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ہیں تو ہم محبت کرتے ہیں ان شہداء سے، صالحین سے، صدیقین سے، نبیین سے کہ جن کا ذکر قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان پر اللہ کا انعام ہے، یقیناً وہ انعام یافتہ ہیں اور ان سے ہم محبت کرتے ہیں. اب جب ان سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گی. سبحان اللہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، اور قرآن کی اس آیت مقدسہ کو اپنے حاشیے ذہن میں بیٹھائیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو. امام علی مقام امام حسین کی آپ اگر زندگی کا بغور مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی یہ صبر سے شروع ہوئی تھی اور صلاۃ پر ختم ہوئی. بے شک. صبر سے شروع ہوئی ہے. امام حسین کی عمر پاک غالباً 4 ساڑھے 4 مختلف روایتیں ہیں، 6 5 اس طرح کی روایتیں ہیں. بچپن کا زمانہ تھا. وہ ذات جو امام حسین سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے میرے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی ذات تھی. آپ کا ظاہری سایہ آپ سے اڑ جاتا ہے. امام حسین کو تکلیف ہوئی 6 ماہ کے بعد، نانا کے وصال کے 6 ماہ کے بعد حضرت خاتون جنت کا وصال ہوتا ہے. یقیناً امام حسین صبر کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کے والد محترم حضرت مولا علی شیر کائنات کا وصال ہوتا ہے. امام حسین صبر کرتے ہیں. امام حسن کو زہر دیا گیا، کلیجہ کٹ کٹ کے نکل رہا ہے، دست پہ دست اور قے پہ قے، الٹی پہ الٹی ہو رہی ہے. امام حسین صبر کر رہے ہیں. بھائی حسن کا وصال ہو گیا، امام حسین صبر کر رہے ہیں. یزید تخت نشین ہو گیا، امام حسین صبر کر رہے ہیں. یزید بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں، امام حسین صبر کر رہے ہیں. یزید اب مدینے کی زمین امام حسین پر تنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. امام حسین صبر کر رہے ہیں. نانا کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، امام حسین صبر کر رہے ہیں. مدینے سے آپ مکہ آتے ہیں ہجرت کر کے. مکے میں اجلے صحابہ نے آپ کو مشورہ دیا آپ مت جائیں، مگر امام حسین کے سامنے وہ شرعی تقاضے تھے جن کی بنا پر امام حسین کوچ کرنے پر مجبور تھے. امام حسین کا مکہ بھی چھوٹ رہا ہے، امام حسین صبر کر رہے ہیں. راستے میں آپ کے نمائندہ حضرت امام مسلم کی شہادت کی خبر ملتی ہے، امام حسین صبر کر رہے ہیں. راستہ روکا گیا، امام حسین صبر کر رہے ہیں. فرات کے قریب میں ڈیرا ڈالا گیا، مگر فرات کا پانی ہر کوئی
किसी को कोई एतराज नहीं, मगर खेमे हुसैन तक एक कतरा भी ना पहुंचे। इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार 3 दिन तक पानी बंद किया गया। इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं। 7 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक पानी बंद हुआ। इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं। अब फिर 10वीं मुहर्रम की सुबह को जंग का नकारा बजाया गया। इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं। लोगों, जंग की इब्तिदा हमारे तरफ से ना हो, जालिम जुल्म करे, हम सहेंगे। इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं। एक के बाद दिगर इमाम हुसैन के रफुका मैदान कारजार में जा रहे हैं। इमाम हुसैन उन नफूस कुदसिया को उठा कर ला रहे हैं और जान आफरी के सुपुर्द कर देते हैं लोग, मगर इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं। जितने भी मुआविन और मददगार थे वो एक के बाद दिगर जामे शहादत नोश कर लिए। इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं। अब बारी आई अहले खाना की। आपकी निगाहों के सामने आपके भाई इमाम हसन की अमानत हजरते इमामे कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद होते हैं। इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं। इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं। आपका लख्त जिगर हजरत अली अकबर शहीद हो रहे हैं। इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं। 6 माह का नन्ना मुजाहिद था जो गोद में उठाकर इमाम हुसैन ले गए थे पानी के लिए। शायद इनको देखकर उनको रहम आ जाए और चंद कतरे पानी इस नन्हे बच्चे के हुल्कुम में टपका दे, मगर उन्होंने पानी न दी और उस जहर आलू तीर मारा। इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं। सकीना प्यास की शिद्दत से तड़प रही है। इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं। एक के बाद दिगर अपने अहले खाना को अपने निगाहों के सामने जामे शहादत नोश करते हुए इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। अब वो वक्त आ गया, एक के बाद दिगर सब जामे शहादत नोश फरमा लिए। अब कोई बचा नहीं। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी है। अब आखिरी उस नूरानी काफिले का निगहबान इमाम आली मकाम रन में जाने के लिए तैयार हैं। अब सोचो और आप तस्वीर करो, अगर हमारे और आपके यहाँ एक मैयत हो जाए, हम खाना पीना छोड़ देते हैं, हम दोस्त और अहबाब के गले लग लग कर रो रहे हैं, तड़पते हैं। आज हमारे घर में मातम सा बुझ जाता है, मगर कुर्बान जाओ इमाम हुसैन की सब्र पर कि अपने निगाहों के सामने में अपने भांजों की, अपने भतीजों की, अपने भाइयों की, अपने बेटों की लाश को देख रहे हैं, मगर किसी से गिरिया वजारी नहीं कर रहे हैं, किसी से आहो फगा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर हाल में रब का शुक्र अदा कर रहे हैं और इस्तिकामत का पहाड़ बन करके रब के इस आजमाइश में जिस आजमाइश में मुब्तला थे उसका एग्जाम देते हुए कामयाब नजर आते हैं। आखिर में इमाम हुसैन जब रन में जाने के लिए तैयार हुए, इमाम हुसैन के काफिले का अंदर का मंजर क्या था? उन पाक बाज इफ़्फ़तमाब खातून का आखिरी सहारा उनके निगाहों के सामने ओझल हो रहा है। अब उन पर कैफियत तारी क्या होगी? बीमार आबिद हैं जो गशी पर गशी तारी हो रहे हैं, उन पर वो उठ रहे हैं, अब्बा जान आप मत जाइए, मैं आपके बदले में जा रहा हूं। मगर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने उन्हें तसल्ली दी, कहा बेटा सुनो, हुसैनी सैयद का सिलसिला तुम्ही से जारी होना है, इसलिए तुमको ये लुटा पुटा काफिला लेकर नाना के मदीने पे लेकर जाकर छोड़ना है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन उसको सब्र की तलकीन कर रहे हैं और कुछ वसीयतें और कुछ नसीहतें करके फिर इमाम आली मकाम जब जाते हैं मैदान रंग में। आपको मालूम है इमाम आली मकाम के मुकाबले में जो भी आता था, खुदा की कसम, इमाम हुसैन का वो जुल्फकारी, वो तलवार जुल्फकारी जब इमाम हुसैन चलाते थे तो दुश्मन के परखचे उड़ा देते थे। जिस सिमत करते, मैमना में जाते उनके परखचे उड़ा देते, मैसरा में जाते उनको दरहम बरहम कर देते, कल्ब का तो हाल बुरा कर देते। आखिर में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन जब जख्म से चूर हो गए और तीरों और नेज़ों की बारिश इमाम आली मकाम पर हुई, सर सजदे में रखा, ऐन जुमा का वक्त था और सब सजदे में रखा और कहा कातिल को ये बताओ ये वक्त कौन सा है? कहा जुमा का वक्त है। कहा ठीक है, जरा सर से पैर हटा लो, मुझे सजदा करने दो। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सर सजदे में रखा है। पूरी कायनात ने इमाम हुसैन को सर सजदे में रखता हुआ तो देखा, मगर सर उठाता हुआ किसी ने नहीं देखा। कुरान फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद चाहो। इमाम हुसैन की जिंदगी पढ़ो कि जिनकी जिंदगी सब्र से शुरू हुई थी और सलात पर जाकर खत्म हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इसने शहदाए करबला,
जश्न सौदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अल्लाह मआ साबिरीन, अल्लाह साबिरों के साथ है। जाते जाते इमाम हुसैन ने हमें क्या पैगाम दिया? हमें पैगाम ये दिया कि हक के खिलाफ डट जाना है, और नमाज जो ये मेरे रसूल पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेराज का तोहफा है, इसके हर हाल में पाबंदी करनी है, इसके हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करनी है। कुछ भी हो जाए हमें नमाज नहीं छोड़नी है। मगर देखिए, पानी न मिला, शरीयत ने हमें क्या बताया है? पानी नहीं है तो तुम तयम्मुम करके वज़ू बनाओ, तुम तयम्मुम कर लो, और वज़ू बनाने के लिए अगर पानी नहीं तुम तयम्मुम करो, उसके बाद तुम नमाज पढ़ लो। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। होना तो चाहिए था मैदान कारसार में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर नमाज नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि लाशों का अंबार उठाते उठाते बाजू थक गए होंगे। लोग ये सोचते होंगे कि अब ये नमाज कहाँ पढ़ेंगे, मगर हुसैनी इमाम हुसैन ने अपने मानने वाले क़यामत तक के आने वाले हुसैनियों के लिए पैगाम दे दिया, तुम कितनी भी मुसीबत में हो, तुम कितनी भी तकलीफ में हो, कुछ भी हो जाए, मगर नमाज किसी हाल में मत छोड़ना, नमाज किसी हाल में मत छोड़ना। यकीन जानिए, पक्का सच्चा हुसैनी हम अहले सुन्नत वल जमात हैं कि हम इमाम आली मकाम के उन सीरत मुक़द्दसा पर अमल करते हैं जिन सीरत मुक़द्दसा पर चलकर इमाम आली मकाम ने जामे शहादत नोश फरमाई है। आज हम अहले सुन्नत का वल जमात का यही वतीरा रहा है कि हम हक को हक कहते हैं, बातिल को बातिल कहते हैं। हम बातिल के सामने कभी सर झुकाते नहीं और न उससे कोई कंप्रोमाइज करते हैं। ये दर्स हमको मिला है इमाम हुसैन के मैदान करबला से मिला है। यकीनन हम उसी रविश पर चलते हैं। मेरे भाई हाजी नईम साहब ने बड़ी खुलूस और मोहब्बत के साथ हजरत मौलाना रफ़ीक साहब के तवस्सुत से हमें दावत मिली थी। सोचता था कि एक सैर हासिल गुफ्तगू कर सकूं, मगर ये मेरी कमी है कि चूँकि मैं पहले भी बोल दिया था, मगर मुख्तसर अंदाज में मैंने यहाँ से लेकर वहाँ तक सुना दिया। अब आप आने वाले मुक़र्रिरीन से तफसीली वाक़ियात समाअत करेंगे, चूँकि नमाज का वक्त है, जमात खड़ी है, और इसलिए आप हज़रात चलें, नमाज पढ़ें। व आखिर दावा।